dear student. Today we'll see partnership final account problem number 4. I hope आपको पहले 3 प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा. अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लीजिए, मैं ट्राई करूंगी सॉल्व करना. ठीक है. So we'll move to the problem number 4. This is the trial balance in front of you. Date is 31st March 2019. The debit balance and the credit balance. Now debit balance show either asset or debit balance of trading account or debit balance of profit and loss account. Same here, credit balance show liability or credit side of profit and loss or credit side of trading account. So this is the trial balance and these are the adjustment. Trial balance has a 1 effect and adjustment has a 2 effect. So we'll move. First stock will come trading account, of course debit side, debtors, that is a balance sheet asset, bill receivable, balance sheet asset, purchase, that we need to write trading account. Purchase means purchase of raw material. So raw material तो हम फैक्ट्री में रखेंगे और फैक्ट्री से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट. रिटर्न्स, नाउ we get confused here, return outward है या inward है. So don't worry, if they have given debit side return, we have to minus from credit. That means sales में से minus करना है. So this is called sales return. Then carriage inward. So this will go trading account. Carriage outward will go profit and loss. इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई, O for office. So carriage outward will come profit and loss. Which side? Debit side. Motor vehicle, of course this is a balance sheet asset side. General expenses, profit and loss. Export duty, that is a profit and loss. But if they have given import duty, so that will go trading account. Then so advertisement, this is a hidden adjustment. 3 years they have given. 1st October means 6 months. Okay, so we'll calculate later. Printing and stationery, so profit and loss will go profit and loss. Advertisement will go profit and loss. Printing and stationery, of course profit and loss. Balance sheet liability, drawing we have to minus from the capital. Leasehold premises, of course that will be a balance sheet asset. Cash at bank asset. Furniture balance sheet asset. So this is done. Debit side, already I have put this point, that means we have to write this inner column. Because why we put here inner column? Because drawing we need to minus from here. Okay, now we'll move to the credit. Bank overdraft, that is a liability. This is one type of small loan given by the bank to the businessman who is having a current account. Okay, bills payable, again bill, that is a liability we have to pay in future. So whenever we have to pay in future, that is one type of pension, so that will go liability. Creditors, again same here, we have to pay our debts to the creditors, so liability. Sales will go trading account. Of course don't forget to minus this return. Outstanding rent, of course now this will go liability. अगर सिर्फ रेंट दिया होता, आउटस्टैंडिंग नहीं दिया होता, तो रेंट है तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में लिखा होता. ठीक है, और एज्यूम किया होता कि दिस इज अ रेंट रिसीव्ड. बट हियर पुट outstanding rent, that means we need to pay in future, and whatever we need to pay in future, that expenses goes liability side. Again same unpaid wages, that is a outstanding. So don't get confused कि unpaid क्या है, मतलब अभी तक paid नहीं किया है, but of course we have to pay. We means Meera and Madhu. So again this will go balance sheet liability. Capital, as you know, balance sheet liability, we put here dash, that means we have to write inner column, will minus this drawing. And purchase return, here they given the clearly purchase return, so this is minus from the purchase. So return डेबिट में है तो माइनस करो क्रेडिट से, और जो क्रेडिट में दिया है माइनस करो डेबिट से. सो ऐसे क्रॉस होना चाहिए. ओके, आई होप आपको समझ में आया ट्रायल बैलेंस. नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविडेंट फंड, सो पुट अ टिक मार्क. डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगेन डिस्काउंट डेटर्स है तो डिस्काउंट डेटर्स को 2 पॉइंट रखो, दैट मीन्स हमको यहाँ पे 2 से 3 लाइन छोड़नी है. ठीक है. लीज होल्ड प्रीमाइसेस, तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे टिक मार्क करो.
देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखो यहाँ पे मैंने सब तरफ डॉट किए हैं. दैट मीन्स वी नीड टू राइट इनर कॉलम. वीडियो पॉज कीजिए और चाहिए तो एक बार चेक कीजिए. ओके, सो नाउ विल मूव टू द सॉल्यूशन. This is trading and profit and loss account. You can make separate or you can make combine. ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस आप कंबाइन बना सकते हो या अलग अलग भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट वन इज द बैलेंस शीट. सी योर डेट 31st March 2019. डेट इज कंपलसरी. सो जो ट्रायल बैलेंस में डेट दी है वही हमको यहाँ पर लिखनी है. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट. फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट के सब आइटम डेबिट साइड के पहले फिनिश करेंगे. सो स्टॉक सी 25,000. Then purchase, here I put a dot, that means we have to write inner column. See purchase 2,08,500. The return, if they have given debit side, we have to minus from credit. So credit में तो sales होता है, अभी तक नहीं मिला है लेकिन हम यहाँ पे माइनस करके रखेंगे. जब मिलेगा तब आउटर कॉलम में बाहर लिखेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज carriage inward. See trading account. Then what left? I think all is done. So we finish trading account. Within 1 minute we finish the trading account. जैसे ही आपके पेपर में आएगा आप ऐसे कट करो. जो जो आइटम आपने लिखे हैं पोस्टिंग के वक्त, ये सब क्या करने हैं आपको, कट करने हैं. ओके, नाउ विल मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस. अब सिर्फ डेबिट साइड हम प्रॉफिट एंड लॉस की देखेंगे. सो हियर यस, कैरेज आउटवर्ड. सो कैरेज आउटवर्ड. देन जनरल एक्सपेंसेस, no adjustment, so directly write outer column. Export duty, advertisement, of course we have to do adjustment here. This is called hidden adjustment, inner adjustment. Okay, so this we are supposed to write here. Then printing and stationery, done. So all we finish. अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया रहेगा तो देखो सब डेबिट में ही आए हैं. सो जो ट्रायल बैलेंस बोलेगा वही हमें करना है. ओके, सो नाउ विल मूव टू द बैलेंस शीट. अब जो बैलेंस शीट के आइटम बचे हैं, डेटर्स. So we'll write debtors, bill receivable, and ये गलत है. Okay, and motor vehicle. Then finish. Okay, now we'll move to the liability side. See here, capital दिया है उन्होंने, ड्राइंग दिया है, तो ये ड्राइंग हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, लेकिन उसके पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा. मीरा का कैपिटल माइनस 3,500. माधव का कैपिटल जब मिलेगा, ये क्रेडिट साइड में मिलेगा हमको ट्रायल बैलेंस के. ठीक है, अभी तो हम डेबिट साइड देख रहे हैं, तो लेट इट बी. यहाँ पे ब्लैंक रखो. ठीक है, जब मिलेगा तब देखते. सो ड्राइंग 2,000 माइनस. सो डन, दिस इज ऑल्सो डन. नाउ व्हाट लेफ्ट, दिस थ्री ऑल विल गो बैलेंस शीट असेट. सो ये तीनों भी बैलेंस शीट के असेट में लिखना है. सी इनर कॉलम, बिकॉज वी पुट हियर डॉट. That means we need to calculate something. Okay, so finish debit side. Now we'll move to the trial balance credit side. क्रेडिट साइड में कम आइटम होते हैं. बैंक ओडी जैसे मैंने कहा है, दिस इज अ स्मॉल टाइप्स ऑफ लोन. सो ओके, फर्स्ट सॉरी, वी फर्स्ट सी द ट्रेडिंग अकाउंट. सो सेल्स लिखो यहाँ पे. नाउ वी गेट द अमाउंट. ये तो ऑलरेडी हमें मिली थी, ये मिल चुकी है, तो नाउ वी गेट द आंसर. देन ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस रिटर्न, ऑफ कोर्स हमने जगह रखी है यहाँ पे. So purchase return, very simple. So we finish the trading account. This one finish and this one finish. Now we'll move to the profit and loss. तो दिया ही नहीं है कुछ, तो now we'll move to the balance sheet. Bank OD, bills payable, creditors. See, no adjustment, directly outer column. Done. Then outstanding rent, then unpaid wages, and the now we get the capital. उसके लिए तो हमने जगह रखी है. So put a capital. Okay, so we finish all. प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी आइटम नहीं दिया था, तो हमने सिर्फ क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड रिमेनिंग आर द बैलेंस शीट. आई होप पोस्टिंग आपको समझ में आई है. आप खुद मेरे साथ करो तो ही आपको समझ में आएगा. दिस इज नॉट अ थ्योरी पार्ट. तो सिर्फ आप सुनो और समझो नहीं, यहाँ पे आपको मेरे साथ ही लिखना होगा, कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, सो वी फिनिश विद इन 4 minutes. वी फिनिश द पोस्टिंग, and posting has a half marks, we can say half marks. Okay, so now let's see first adjustment. Now all you know, this is compulsory adjustment. अभी तक याद हुई होगी what we have to do. सब सिंपल है. स्टॉक दिया है तो स्टॉक तो फैक्ट्री में होगा. फैक्ट्री मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट के बीच साइड विल राइट
Of course, अगर opening we have written debit side, so closing will write of course credit side 32,000. Now every adjustment has a two effect. So now this is a stock. स्टॉक मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड होता है, स्टॉक थोड़ी हम ऑफिस में रखेंगे. सो सेकंड इफेक्ट विल गो बैलेंस शीट एसेट साइड. डन. नाउ दिस इज फिनिश. नाउ प्रोवाइड प्रोविजन. जब भी प्रोविजन आएगा दैट मींस दिस इज आरडीडी 2000. सो 2000 माइनस करो. ओके. नाउ 2000, this is a RDD, this is a loss, so we'll write here 2000. समझ में आया? बैड डेट्स हो, न्यू बैड डेट्स हो, RDD हो, वो सब लॉस है. So that we need to write profit and loss debit side, because profit and loss is a nominal account. Debit all expenses and credit all income and gain. Done? Okay, now we'll write the next. Create reserve for discount on a debtors. अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझ कर लो. कैलकुलेशन दिया है मैंने यहाँ पे. पहले डेटर्स से हमने क्या, देखो डेटर्स 80,500 माइनस व्हाट वी माइनस आरडीडी दैट इज 2000. सो हाउ मच लेफ्ट 78,500. ऑन 78,500 व्हाट वी गिव द डिस्काउंट. डेटर्स मतलब क्या, कस्टमर. सो वी गिव द डिस्काउंट टू द कस्टमर 3%. सो 3%. सो 78,500 पे 3% निकालना है. ठीक है, बहुत बार मिस्टेक होती है, आप डायरेक्ट 80,500 पे निकालते. सो ऑफ कोर्स नॉट. फर्स्ट यू हैव टू माइनस बैड डेट्स if they have given, then after you have to minus RDD and then you have to calculate the discount. Here they have not given bad debts, so directly RDD दिया, हमने RDD की माइनस की है. फिर जो आंसर मिला है उस पे 3% हमने क्या किया है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स. डन. अब ये माइनस करना है. दिस इज ऑल्सो लॉस फॉर द फर्म, एक्सपेंसेस फॉर द फर्म. ऑफ कोर्स डेटर्स मतलब कस्टमर. कस्टमर को जब हम डिस्काउंट देते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है ना. सो दैट मीन्स हमें, हमारे लिए वो एक्सपेंसेस है. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. अब फाइनल अमाउंट आप बाहर लिख सकते हो, ये दोनों के टोटल करके इसमें से माइनस करो, विल गेट द आंसर 76,145. सेकेंड इफेक्ट विल गो डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2355. सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से discount allowed 2355. Done. Now we'll see the next. Value of leasehold premises. This is all we finish. Value of leasehold premises valued 1 lakh. Valued 1 lakh. So 1 lakh बाहर लिखना है. ये मैंने बार बार आपको एडमिशन के वक्त भी सिखाया था, रिटायरमेंट के वक्त भी सिखाया है. Whenever they give the word valued, हमें ये बाहर डायरेक्टली लिखना है. And then we have to decide क्या हुआ है. सी पहले 1,10,000 था, 1 लाख हो गया. सो इजीली यू कैन फाइंड आउट क्या हुआ है. ऑफ कोर्स रिडक्शन हुआ है ना, वैल्यू कम हो चुकी है ना. सो व्हेन वैल्यू कम हो गई तो हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ठीक है. सो कैलकुलेट हियर डेप्रिसिएशन. डन. आई होप आपको समझ में आया है. Now tell me the second effect. Very easy. Depreciation का second effect कहाँ पर होता है? Of course profit and loss के debit में. Done. 10,000. And the last one, outstanding expenses, printing and stationery. So printing and stationery. So outstanding है 500, इसकी total 1700 आती है. And outstanding है, देखो expenses में pay करना है. Debit the expenses. Expenses add किया है, मतलब खर्चा बढ़ा है, टेंशन बढ़ा है. और जब टेंशन बढ़ता है तो क्या कहा था मैंने, ऑफ कोर्स वी हैव टू राइट लायबिलिटी साइड. इट्स अ 500. ठीक है. सो वी कवर ऑल द एडजस्टमेंट. एनीथिंग लेफ्ट? यस, ऑफ कोर्स देयर इज वन हिडन एडजस्टमेंट. ये भूलना नहीं है. बहुत बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं. ठीक है. सो हमें ये याद रखना है कि हिडन एडजस्टमेंट भी हमें फिनिश करनी है. ओके. So now read the properly what they have given. Advertisement for 3 years from 1st October 18. हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 31st March 2019. और उन्होंने ये पे किया है, 3 साल के लिए पे किया है. कितना पे किया है, 4,800 पे किया है. लेकिन कब से किया है, अक्टूबर से. तो ये साल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा किया, सिंपल अक्टूबर से मार्च तक कैलकुलेट करो. अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड 31 मार्च। सो 6 मंथ्स हुआ है, ठीक है। सो 6 मंथ से हमने खर्चा किया है, ये तो पूरे 3 साल का है, बट हमें कितने मंथ्स का चाहिए? 6 मंथ्स का, क्योंकि ये साल तो हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया है। डन। सो सी हियर, आपके लिए मैंने किया है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट करना है ये 3 साल का 1 साल में। सो 4800 3 इयर्स। सो 1 ईयर के लिए कितना? ईयर के नीचे ईयर लिखना है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 4800 into 1 upon 3, it comes 1600। तो 1 साल के लिए 1600। बट अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, हमें 1 साल का नहीं, हमने तो अक्टूबर से स्टार्ट किया एडवर्टाइजमेंट पे करना। सो अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ्स। सो फिर ये अगर 1 साल के लिए है, सो 6 मंथ्स के लिए कितना? ऑफ कोर्स 800। तो ये साल हमारा खर्चा सिर्फ कितना आया है? 800। सो राइट हियर 800। ओके, समझ में आया आपको? अदरवाइज फिर से एक बार देखो, सुनो क्या बोला है मैंने। 4800 फॉर 3 इयर्स, तो पहला काम करना है उसको 1 ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 1 साल के लिए 1600 खर्चा आया है, बट हियर वी स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर। सो अक्टूबर दैट मींस 6 मंथ्स, सो इट विल कम्स 800। सो रियल एक्सपेंसेस, दिस करंट एक्सपेंसेस इज 800। देन व्हाट इज दिस 4000? दिस वी कैन कॉल एडवांस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवांस में पे किया है। सो देखो, डेबिट द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लेस हुआ है, दैट मींस टेंशन कम हुआ है। टेंशन कम है मतलब ये जाएगा असेट में, 4000 जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने 4000 पे किया है। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक। डन, ऑल एडजस्टमेंट डन, हिडन एडजस्टमेंट डन, पोस्टिंग डन। नाउ वी कैन क्लोज द अकाउंट। सो सी हियर, डेबिट या क्रेडिट साइड, ऑफ कोर्स ये समझ में आ रहा है, क्रेडिट साइड इज हेवी। So we'll minus, so we'll get the GP 1,20,500. Check करो बुक में करेक्ट है क्या? Now once we get the GP debit side, we have to transfer credit side 1,20,500. ठीक है? Profit and loss account is a nominal account. Debit the expenses, credit the income and profit and gain. So C बराबर क्रेडिट में आया ना ट्रांसफर, अल्टीमेटली हमने ट्रांसफर क्रेडिट में ही किया है। Now it's time to close. Again we get the net profit. This net profit we are supposed to distribute among the partners. So distribute among the partners. Done. अब यहाँ पे एक हुआ है कि जो हमारा सी अगर आपने देखा है ये ऑड फिगर है और इक्वल रेशियो में नहीं बढ़ता है, ठीक है। अगर यहीं पे 44 होता तो बराबर इक्वल फिगर में हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, माउस ज्यादा ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 45 दिया है। तो ये 45 जो दिया है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो किसी को 1 रुपया ज्यादा दे दो। बोर्ड में अलाउड है, किसी आप चाहे तो इसे 1 रुपया ज्यादा दे सकते हो या इसे 1 रुपया ज्यादा दे सकते हो। मैंने माधव को 1 रुपया ज्यादा दिया है, ठीक है। सो सी हियर एंड नाउ टैली द बैलेंस शीट। बुक में चेक करो सब कंप्लीट है क्या। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फाइनल अकाउंट वेरी इजी एंड स्कोरिंग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।